the channel, and in today's video I'm going to speak about how I scored exemption in my advanced accounting exam and how can you do it too. So let's start from the beginning. So when we enter CA intermediate, we think that advanced accounting is same as the accounts we have learned till foundation or +2, but yeah, it is same, but there is a slight difference that we are now going to study about accounting standards, which most of the students ignore or take it lightly, and I guess that is the reason they do not score exemption. So I'm talking about here in this video all the tips and tricks, all the which you should keep in your mind to score exemption and good marks in your examination. So please stay till end and do like or subscribe the video if you find it useful. So let's begin. First thing first, accounts demands practice. Accounts demands practice, and at the same time all the other subjects of intermediate also demand same amount of time, I guess, and the practice. So if I bifurcate the subjects group wise, so first we have group 1 and then we have group 2. In group 1 we have two heavy practical subjects, which is accountancy and taxation, and in group 2 we have practical subjects of costing and financial management. So both the groups have practical subjects with equal load of practice and time consumption, right? So what we have to do to score exemption or good marks or to clear the group in first attempt, you have to make one subject your, like, ऐसे कहते हैं ना कि ढाल बना देनी हमें एक सब्जेक्ट की, ठीक है, योर प्रोटेक्शन की और एग्जामिशन गिविंग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को अपना बना लो इन ईच ग्रुप की इस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर करना ही है, एग्जामिशन लानी ही है टू मेक अप योर एग्रीगेट. इन ग्रुप 1 द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इज़ अकाउंट्स. सो अकाउंट्स में एग्जामिशन लाना इज़ नॉट समथिंग यू विश टू डू, it is something compulsory to pass that group in first attempt and to make up your aggregate, because accountancy is something we are doing from like +2 grade say, and this is why we are here to become chartered accountants. It is accountancy, it is our core subject, we all love doing accountancy. So I guess we all should give a little bit extra effort if it demands to score good marks in that subject, and it is easy, it is doable if you follow a little bit of tricks and tips to score good marks. You will definitely do just like I did. I did it in second attempt, but the mistakes I corrected, whatever I learned, I'm going to share this in this video. So first thing first कि आपने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है अकाउंटेंसी की. अब प्रैक्टिस से what do I mean? प्रैक्टिस से I mean that once you are done with your lectures, please do stick to one question bank. I did the same question bank twice by my handwriting, so that was my 2 revisions, and then I did 3rd revision. So this was my practice for accountancy, which helped me get the exemption. Tip number 2, do not take accounting standards lightly, even the theory accounting standards, please. First of all, you will focus upon your practical standards and practical questions only, but after that, once you are done with it, please focus on the theory portion also, because ICI do ask theory also for 5 marks, 2 marks, 3 marks, and all of those marks matter to us. Okay, so गिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रायोरिटी. और स्टैंडर्ड्स में से भी कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं, डू नॉट फॉल फॉर टू मच ऑफ डैट प्रिडिक्शंस और एनालिसिस. ठीक है, हमें थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि क्या आ रहा है एग्ज़ाम में क्या नहीं, बट ICI एग्ज़ाम्स में आई वोंट से, बिकॉज अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में होता क्या है कि जो स्टैंडर्ड लास्ट अटैम्प्ट में आया, लास्ट अटैम्प्ट में आया, तो फिर वो एकदम सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट में नहीं पूछा जाता है. This is the normal pattern of ICAI, but kabhi kabar, just to give you a surprise, ICAI can break this pattern also. So just be prepared in every way. अच्छा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या सारे पढ़ने ज़रूरी है? नहीं. क्या मैंने सारे पढ़े थे? नहीं. आई हैव स्किप्ड लीजिस वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS19, एंड शायद 1-2 बीच में और भी छोड़े थे. तो 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, बट थॉरली प्रिपेयर करो, पूरी कोशिश करो कि पूरा सिलेबस हो जाए, बट एंड में जाके जब नहीं होता तो आप छोड़ सकते हो, उससे आपके एग्जामिशन या कुछ रुक नहीं जाएगा. बिकॉज मेरे अटैम्प्ट में तो आया भी नहीं था फिर AS19, इसलिए आई डिडंट लूज़ मार्क्स
but it's just a matter of chance. Okay, now coming to the main portion, there are, other than accounting standards, we have a few chapters जिसमें we are supposed to make balance sheets, like consolidation हो गया, और क्या है, consolidated financial statements, we have buyback, internal reconstruction, financial statements. So अब इस इन सब में से देखो, बच्चे जो है स्किप करते हैं कुछ चैप्टर्स, बट आई विल सजेस्ट यू कि सारे 5-6 चैप्टर्स जो लास्ट वाले हैं इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रिपेयर करो, ठीक है. ऑल द चैप्टर्स आर वेरी इजी. आई यूज़ टू फाइंड देम वेरी इजी. स्टूडेंट्स को वो थोड़े से डिफिकल्ट लगता है, स्पेशली अमलगमेशन जैसे चैप्टर्स, बट देखो प्रैक्टिस से आ जाएगा. मुझे जर्नल एंट्रीज़ वाले चैप्टर्स शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं, +2 ग्रेड से ही, इसलिए जर्नल एंट्रीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ के कंसेप्चुअली कर लेती थी. मैं आपको टिप्स देती हूँ हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दीज चैप्टर्स. फर्स्ट गो फॉर द ईजी वंस लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक एंड इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. सबसे पहले इन्हें स्ट्रॉन्ग कर लो. दे आर वेरी इजी स्कोरिंग. एट द सेम टाइम केस स्टडीज़ में भी पूछे जाते हैं, तो फिर एक तीर दो ही निशान. आपके ये थ्योरी मतलब बैक डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हो तो. और इसमें से एक केस स्टडी तो आती ही है, बायबैक से आती है, एंड इंटरनल से भी मतलब पूछा जा सकता है, मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है. तो बायबैक से क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक, टाइप्स MCQs पूछे जाते हैं. एंड यू फॉर द क्विक कैलकुलेशन यू नीड टू हैव वेरी गुड ग्रिप ऑन दैट चैप्टर, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो. फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर वेरी इजी टू प्रिपेयर. देन कम्स अमलगमेशन, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स. इसमें अब देखो लास्ट के हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर कंपल्सरी वन, एंड देन सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इसमें से होता है बायबैक, इंटरनल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, एंड देन यही चीज़ चलती है. लास्ट वाला क्वेश्चन ब्रांच अकाउंटिंग और उसके साथ कुछ ऑप्शन में थ्योरी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं. और जो बीच के क्वेश्चंस रह गए, बीच के क्वेश्चंस ईदर अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, इनमें से होता है, और उसमें पार्ट्स बने होते हैं जो इंटरचेंज होते रहते हैं. सो अगेन व्हाट हैपन्स इसके जो लास्ट अटैम्प्ट में जिस चैप्टर से पूछा जाता है वो नेक्स्ट अटैम्प्ट में नहीं पूछा जाता बाय द ICAI. सो दिस इज़ अ नॉर्मल पैटर्न ऑफ ICAI और आस्किंग क्वेश्चंस, बट आई विल नॉट से कि इस पैटर्न को आप फॉलो करो. और मतलब आई वुड सजेस्ट यू कि आप सारे ही चैप्टर्स पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर कर लो. मेरा स्ट्रैटेजीज वॉज टू डू द क्वेश्चंस और द क्वेश्चन बैंक मल्टीपल टाइम्स इन सच अ मैनर कि वो कंसेप्चुअली मेरे दिमाग में पैसिवली बैठ जाए कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है. बिकॉज अकाउंट्स में आते हैं रिपीटेटिव क्वेश्चंस, रिपीटेटिव बेसिस वाले क्वेश्चंस, ठीक है. बहुत प्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन पेपर आता है, हमें पता होता है ऐसा ही टाइप ऑफ क्वेश्चन उसमें से पूछा जाएगा. ऑल दो बिकॉज क्योंकि CA का एग्ज़ाम है, कुछ ना कुछ एक एंट्री, एक एडजस्टमेंट ICAI बहुत डिफ़िकल्ट आउट ऑफ द बॉक्स डाल देता है जो आपको ऑन द स्पॉट सोचनी पड़ सकती है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी एग्ज़ाम में. एट द सेम टाइम इफ़ यू आर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग तो आपसे बन जाएगा पेपर. सो फॉर दिस वॉज ऑल माई टिप्स फॉर द अकाउंटेंसी एग्ज़ाम. ये तो था प्रिपरेशन के लिए कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ो नहीं, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ो, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे तो बनेगा पेपर, ठीक है. एंड प्रैक्टिस के लिए ऑन द लास्ट डेज मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था वो भी बता देती हूँ. सो आई यूज़ टू वॉच वन शॉट वीडियो से आई यूज़ टू मेक अ फार्मूला शीट. आई विल शो यू हेयर. तो एक फार्मूला शीट में बना ली थी जिसमें मैंने ना एक 1 पेज पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समराइज़ किया हुआ था, ठीक है. तो AS1 से लेके AS26 तक दैट वाज फॉर माय लास्ट डे रिविजन. सो मैंने ऐसे करके स्टैंडर्ड्स रिवाइज़ करे थे. एट द सेम टाइम मैं जो है लास्ट वाले जो हमारे डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स होते हैं उसके भी नोट्स बना लेती थी. सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप फॉर यू ऑल कि डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स को आप प्रैक्टिस तो करो ही, बट साथ में उसके नोट्स भी बना लो. लाइक नोट्स मीन्स फॉर एग्जांपल बायबैक है तो बायबैक आई वांट टू रिवाइज, तो आई विल नॉट सी ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द बायबैक. इंस्टेड आई विल मेक अ नोट्स रजिस्टर और समथिंग where I will write all the journal entries related to buyback, that for buying back the shares, ठीक है. ये सारी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, ये प्रोसीजर होता है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बैक हो सकते हैं, वो इस तरीके से निकाला जाता है. आई यूज़ टू मेक नोट्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो जस्ट लाइक आई डू फॉर माई थ्योरी सब्जेक्ट्स. सो इट इज़
इट बिकम्स वेरी ईजी टू रिवाइज थ्रू दोज नोट्स. तो मैंने वन डे रिविजन ऐसे ही किया था, वन शॉट्स देखे थे, वन शॉट्स के बाद नोट्स बनाए थे, नोट्स के बाद मैंने एक बार और थर्ड टाइम रिविजन किया था क्वेश्चन बैंक से. ऑल्सो फैकल्टी आई रेफर्ड वॉज नितिन सर, फिजिक्स वाला, and I took classes from sir only, and I referred sir's material given by them only. उस मटेरियल में मेरे पास MTP, RTPs, ICIs, question module questions, PYQs, everything was covered, so I never felt need to look somewhere else for my preparation. But फिर भी मैंने एक और क्वेश्चन बैंक और रेफ़र किया था, बट दैट वाज लाइक जिसमें मैं एज अ टेस्ट उस क्वेश्चन बैंक को यूज़ करती थी, बिकॉज द क्वेश्चन बैंक आई एम रीडिंग फ्रॉम आई यूज टू बी वेरी यूज टू विद इट. आई नो एवरी क्वेश्चन की क्या क्या था मेरे वाले क्वेश्चन बैंक में. सो जस्ट फॉर टेस्टिंग माई सेल्फ आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम एनी रैंडम क्वेश्चन बैंक आई गेट ऑनलाइन. ठीक है, तो ऐसे करके मैं प्रैक्टिस कर लिया करती थी फॉर द टेस्ट वगैरह. एंड वैसे थ्रू आउट द प्रैक्टिस, थ्रू आउट माई 3 रिविजन्स, आई रेफर्ड ओनली one question bank, and this is what I will suggest you also, because our brain gets used to with that questions and the pattern of questions जैसे उस बुक में लिखा होता. तो प्लीज़ रेफर वन क्वेश्चन बैंक ओनली, स्टिक विद वन मटीरियल, स्पेशली फॉर अकाउंट्स. ठीक है, दीज आर द टिप्स. अब मैं पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बता देती हूँ थोड़ी सी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स है, एंड टू बी ऑनेस्ट ICI बस मौका ढूंढ रहा होता है कि आपके वो मार्क्स कट करे, बिकॉज ऑफ कोर्स अकाउंट्स का एग्ज़ाम है. वी ऑल आर गुड एट अकाउंट्स, वी ऑल लव अकाउंट्स. मतलब ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट्स हमें करना पसंद नहीं है, आता नहीं है, आता है, ऑफ कोर्स आता है. जर्नल एंट्रीज पास करनी नहीं आती, आती है. सो फिर भी मार्क्स क्यों कट जाते हैं बच्चों के प्रेजेंटेशन में. आई हैव सीन सो मैनी लाइक people telling about their answer sheets on LinkedIn or various platforms, on other YouTube channels also, where people are sharing their experience कि हमारे मार्क्स ऐसे 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 यहाँ पे डिडक्ट हो गए थे. तो वन ऑफ द फ्यू एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं अपना भी और कुछ स्टूडेंट्स का भी, विच आई रेड ऑन LinkedIn. सो वन ऑफ द आंसर शीट आई सॉ वॉज कि जहाँ पे देर वॉज इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का क्वेश्चन, एंड रिकन्स्ट्रक्शन की जगह द स्टूडेंट यूज्ड सम अदर वर्ड, and the whole journal entries were correct, everything was correct, but the marks were deducted. Then comes koi student was there, the journal entries are all right, but the format was not very clearly visible, and it was very messy, answer sheet was very messy. So ICI deducted 0.5 or something marks for that also. So ICI can deduct marks for anything you do wrong in your exam, okay, and you never know what is that. So be very careful while writing the exam, practice a lot, and देखो लेंदी तो आता ही एग्ज़ाम, जल्दी तो हम सबको होती है जल्दी लिखने की पेपर, बट फिर भी जितना हो सके उतना नीटली लिखो, उतना फॉर्मेट्स में लिखो. वी ऑल नो फॉर्मेट्स क्या हैं, बस वो बन नहीं पाते एग्ज़ाम में. बट फिर भी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा स्पेसेस छोड़ के अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. आंसर शीट हमेशा सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो. जर्नल एंट्रीज पास करो तो कोशिश करो कि आप फॉर्मेट बनाओगे, टाइम नहीं मिलता तो लास्ट में बनाओ, नीटली बनाओ. एंड बहुत ध्यान रखो नरेशंस, डेबिट, क्रेडिट, इन सब चीज़ों का. बेसिक चीज़ें हैं, हम सबको पता है कि करनी है, बट कोई करता नहीं है. बस यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, एंड ICI सीरियसली डिडक्ट करता है मार्क्स. ठीक है, तो उन्हें तो बस मौका चाहिए मार्क्स कट करने के, ये मौके हमें नहीं देने हैं. ओके, नाउ कमिंग अबाउट अटेम्प्टिंग द पेपर. अटेम्प्ट करना कैसे है पेपर, क्या सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, बिकॉज देयर आर 2 पार्ट्स, MCQs एंड देन डिस्क्रिप्टिव. सबसे पहले केस स्टडीज़ अटेम्प्ट करनी चाहिए या फिर डिस्क्रिप्टिव. देखो सबके अपने अपने ओपिनियंस है. आई हैव वॉच्ड मेनी वीडियोज़ ऑन दिस कि कुछ लोग कहते हैं दैट यू शुड अटेम्प्ट in the middle of the exam. Some people say that you should attempt in the beginning of the exam. Some people also say that you should attempt at the last of the exam, and all of them have scored good marks. The strategy depends on you, and the basis of the strategy depends upon your speed, depends upon the question paper also, because when you utilize that 15 minutes का reading time, you will get to know that what portion of the question paper you have to attempt first. You have to decide that on the spot. I will not tell you कि decide it beforehand. तो
or make up your mind to attempt the case scenarios first. What if case scenarios are something you are not prepared with in the exam? What if the question comes like something you are not good to go with or start your exam with? So the question paper of case scenarios and the descriptive portion you will get together in the exam, and you will get 15 minutes of reading time. So I would suggest you, मैंने तो ऐसे ही किया था. I used to start with the case scenarios in the reading time and I used to solve them in the reading time in my mind and mark those questions roughly in my mind or in the question paper a little bit dot or something. Don't write too much in the question paper, it's not allowed. Then when the answer sheet comes, I used to write the answers of the descriptive portion. So this is how I used to attempt the paper. And also I used to make a timeline that in the 15 minutes of reading time I did case scenarios, and I will give myself more 15 minutes, so it will be a total of 30 minutes for the case scenarios portion. So this way I used to save my time strategically and give my MCQs 30 minutes to solve. And after 30 minutes complete, I used to give my full focus and time to descriptive portion only, and then I used to try to complete it as soon as possible so that I get more time to review the case scenarios again and do the any question which is missed out in the beginning, because काफ़ी टाइम बाउंड वे में मैं काम करती थी. बट इट इज़ टोटली योर पर्सनल स्ट्रैटेजी कि कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करना है. डोंट फॉल फॉर एनीथिंग और एनी रिजिड स्ट्रैटेजी कि हम ऐसे ही करेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा या फिर अटेम्प्ट पूरा हो पाएगा. सो इट्स नॉट लाइक दैट. इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन पेपर ऑल्सो, डिपेंड्स अपॉन कि आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छे से आता है या फिर केस सिनेरियो बहुत अच्छे से आते हैं. सो ये ऑन द स्पॉट ही आप डिसाइड करना, दैट वुड बी बेटर. Now comes the last portion of the video where I will talk about how to prepare for case scenarios. देखो case scenarios के लिए I used to struggle a lot because questions are too lengthy, seriously too lengthy, and answer is just an MCQ. You just have to mark an MCQ. 30 marks of MCQs are of great weightage, and it has almost like 30% of your passing percentage. Practice them beforehand. बिफोर गोइंग इन द एग्ज़ाम हॉल, प्लीज़ डोंट लीव इट लाइक कि वहाँ एग्ज़ाम में जाके हो जाएगा. कंसेप्चुअली तो हमने सब कुछ समझ लिया है एंड एग्ज़ाम में जाके MCQs अटेम्प्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक स्कूल में हो जाते थे. नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. प्लीज़ घर पे एक बार ICI केस सिनेरियोज़ बुकलेट रिलीज़ होती है, लास्ट ईयर की भी अटेम्प्ट कर सकते हो बिकॉज अकाउंटेंसी में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. टैक्सेशन के लिए एक बार के लिए आई वुड से कि प्लीज़ डू लेटेस्ट वन वाला, बट अकाउंट्स का समथिंग कि आप एक आधा अटेम्प्ट पहले वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए चलता है. अकाउंट्स में इतने ज़्यादा चेंजेस या कुछ नहीं होता. अगर कुछ चेंजेस है भी तो यू विल स्पॉट इट वंस यू हैव कंप्लीटेड द फुल सिलेबस. केस सिनेरियोज इज समथिंग यू कैन डू only after you have completed or practiced full syllabus, because case scenarios में there is no specific chapter asked. It is from the whole mix of the syllabus, whole mixture. Like they can ask anything from your syllabus, from any chapter or something like that. So this is something you should attempt and practice after you have completed or built up a little bit of your confidence in descriptive exam. Don't wait for much confidence. Once you are done with your first revision, I guess, or second revision, you can start with your case scenarios practice. It will give you more confidence and it will give you your reality check. Where do you stand? Okay, so you should practice case scenarios before going into the exam, and you can do it from the case scenario booklet of the ICI, and you can do it from the previous year papers also. ठीक है, anything will work, but at least practice once before going to the exam by keeping a timer. That is very important. How I used to do it, I never used to put on any timer, but I used to solve many questions in a day so that my mind becomes used to with those type of calculations and those type of reading of that long text of case scenario. तो माइंड और ब्रेन को समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है और इतनी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है. तो जब आप बहुत देर तक उस चीज़ को सॉल्व करते रहते हो तो अपने आप आपकी स्पीड जो है बढ़ जाती है और उस क्वेश्चन को करने का टाइम रिड्यूस हो जाता है. तो स्ट्रैटेजिकली रिड्यूस हो जाता था. मेरे से कभी टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो मैं कभी नहीं करती थी, बट यू शुड डू इट. ठीक है, ओके, आई होप सो आई हैव कवर्ड almost all things important to prepare for this subject.
If anything's missed out, you can ask in the comment section. For right now, let's wind up the video here. Thank you so much for watching, and if you liked it, please like the channel and subscribe it, and give your suggestions for my next video.